Hi everyone, this is Bhavika Arora, and today we have with us Mr. Raghavendra Pratap Singh. Hello, Raghavendra. Yeah, I have. So, let me give you his brief introduction. He's the founder of Helping Hand Foundation, which provides basic needs and education to underprivileged children. Am I right, Raghavendra? Yeah, yeah, So, please introduce yourself and add something more to the intro I have gave. yeah. Hello, everyone. Myself, Raghavendra, and I belong to a village from Bundelkhand, and currently I am pursuing my master's from Pune University. I have done my graduation from Delhi University, and at the time of COVID, with some of my friends, I started this organization. I think this is sufficient for small introduction. Okay. So, Raghavendra, what gave you the idea to start this organization? Where did you get motivation to do all this at a very Yeah. small age? Actually, I basically I heard this question multiple times. So, in very short term, I want to say in COVID time, many of us are in hometown or in our villages like or in our home. So at that time, I interacted with some of my friends and. The one cause to whom I always had some feelings in my heart. Like whenever I move out from my room to some city mall, to some city stations or bus stand, whatever it is. Uh, I saw some small children. They are putting their hands in other pockets for some money or something like that. I don't know why, but those children have some place in my heart. Like I always want to do something for them. I always have feelings for them. So I thought like I have to start something. I have to work for those. I don't know why I thought that time, but I would like to do something. So I connected with my friends, or I texted them, I called them, I have this idea, I want to work on this. So some of them not argued with me, but they said this is not our age to do this thing, or from where we got money, from where we got time to do these all things. Their points are also valid, but at that time I have I can say I have a extra passion or extra like something that makes this thing possible. So some of them supported me without having any question or without having any doubt on my passion or on my vision. So from their support we started this organization 3 years back in July 2020, and at current, like we are working smoothly for street children, for beggars, for underprivileged women, or whatever it is. Okay. So, let me ask you कि जब आप ये कर रहे थे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की होंगी आपने तो क्या थी वो? Talking about difficulties, मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी नए काम को स्टार्ट करें तो डिफिकल्टीज अगर नहीं आएंगी तो उसमें मजा नहीं आता। आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और जब तक आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस ना होना तो वो आपको ऐसा फील नहीं आता है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रांग था, इसमें कुछ ऐसे दम था, इसमें कुछ मजा था। तो डिफिकल्टीज आती है इसीलिए हमें और मोटिवेशन मिलता है काम करने को आगे। एंड अगर मैं डिफिकल्टीज की बात करूँ कि क्या क्या डिफिकल्टीज थी जो हमने फेस की, तो फर्स्ट थिंग लाइक फंड्स की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी भी होती है, क्योंकि अभी भी हमारे पास कोई ऐसे कांस्टेंट सोर्स नहीं है जिसके थ्रू हमें फंडिंग मिल दे या फिर जिसके थ्रू हमें फंड्स मिल पाए। तो फर्स्ट थिंग ये थी कि हमें फंड्स का इशू हो रहा था। सेकंड थिंग लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, बट यहाँ पे अपने इस भारत देश में हर चीज लीगली होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किसी एनजीओ से एसोसिएटेड हैं, वॉट एवर।
सो ये कुछ चीज़ें थी जिनको लाइक इकट्ठा करने में, जिनको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें जा रहा था। बट एनी हाउ वी मैनेज दीज ऑल थिंग्स एंड currently we are registered also. कैसे मैनेज किया आपने, फिर कैसे अरेंज किए सारे डॉक्यूमेंट्स और Yeah, talking about these things, like I have to give a detail about these things, so but I will try to make it short. So basically, at that time I was in Delhi, like in my university itself. So I have some contact of social workers, or I have a strong network in that area. So I have contacted some of them. I requested them to provide some office place or a valid address to, like, to that I can put that address in NGO certificate registration or something like that. So anyhow, I managed, and in September 2021, like almost after 1 year, we got our registration. तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, एनजीओ को कहाँ तक लेके जाना? Yeah, talking about future plans or visions, basically, as a student, I can't say more, but मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर वो पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एंड 90% वॉलंटियर्स जो एनजीओ में वो स्टूडेंट्स ही हैं, और वो जो यूथ हैं उनके पास जो जितना टाइम होता है उतना ही अपना कम टाइम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं सेल्फलेसली। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक विज़न है कि हम इस कंट्री को, अपने शहरों को हम बैगर फ्री बनाएंगे। स्ट्रीट चिल्ड्रंस जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं सड़कों पर, रास्तों पर, झुग्गियों में, उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको एक अच्छा इंसान एटलीस्ट बनाने की जो हमारी मीडियम में कोशिश है, उसको साकार देखना चाहता हूँ अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं। ओके, तो आपने इतने साल कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में काम करते हुए? Around 3 years, more than 3 years, like. ओके, तो इन 3 सालों में, इन पास्ट 3 इयर्स, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दीज चिल्ड्रंस? मतलब आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया आपके एनजीओ ने, बट ऑफ कोर्स आपने भी उनसे कुछ सीखा होगा, तो प्लीज हाँ, शेयर obviously. सम ऑफ योर लर्निंग। Yeah, basically, be frank or to be honest, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि लाइक मैंने एनजीओ इसलिए स्टार्ट किया, मुझे कुछ उससे प्रॉफिट होता है, या फिर मुझे बहुत सारा उससे पैसा मिलता है, वॉट एवर इट इज। बट मेरा ऐसा कभी मोटिव नहीं था, और इन फ्यूचर भी मैं किसी भी ऐसे मोटिव से एनजीओ को रन नहीं करना चाहता जिससे मुझे प्रॉफिट हो। बट नॉट मॉनिटरी, मॉनिटरी मुझे ना प्रॉफिट कभी लेना है ना मैंने लिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने अपने आप में खुद बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ सामने, ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है जो मैंने अपने अंदर देखा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि बिफोर दैट टाइम, लाइक जब एनजीओ स्टार्ट नहीं हुआ था, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं थी। मैं काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन था, मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं था। बट एट दिस टाइम I have thousands of contacts. I have volunteers from more than 25 cities in all over India. So basically leadership quality होती है, communication skills है, network है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक एनजीओ रन करने से मिलती हैं, या फिर सिर्फ रन करने से नहीं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और आप एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, तब भी आप ये सारी चीज़ें अपने आप अंदर, मैं कह सकता हूँ कि अपने अंदर आप ये सारे चेंजेस देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो मुझे पूछने की, जैसे मैं भी अभी कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ, और बहुत सारे जो हमारे व्यूज हैं मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एनजीओ तक खोल नहीं या सकते जाके ना, इतना या टाइम ना, या इतने अवेलेबल। सो व्हाट वी कैन डू एट आवर लेवल है। बेसिकली मैं सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि एनजीओ खुद से स्टार्ट करना है, खोलना इज नॉट अ गुड ऑप्शन ऑब्वियसली। मैंने भी लाइक एनजीओ को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा रिसर्च किया, सर्च किया कि शायद कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ यूथ वर्क कर रहे हो, अच्छे से वर्क कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी हो उस ऑर्गेनाइजेशन में।
तो मुझे नहीं मिला ऐसा उस टाइम पे, तो दैट्स व्हाई आई टेक दिस इनिशिएटिव एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। बात करूंगा आपने जो क्वेश्चन पूछा कि लाइक आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एज अ स्कूल स्टूडेंट ऑल्सो। सो बेसिकली आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस कॉज से आप अफेक्टेड हैं, आपको लगता है कि नहीं ये कॉज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें काम करना चाहिए, लोगों को इससे रिलेटेड समझाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उस कॉज से रिलेटेड आप सर्च कीजिए। बहुत सारी थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ जो काम कर रहे हैं, लेकिन आई कैन ओनली से दैट कि देयर आर ओनली हंड्रेड्स ऑफ एनजीओज जो सच में अच्छा काम कर रहे हैं विद ट्रांसपेरेंसी, और इसमें वैलिड वर्क होता है, अच्छे लेवल का काम होता है। तो आप उन एनजीओज को रेक्टिफाई करें, आप सर्च करें और उन ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन करें। कॉलेज सोसाइटीज भी बहुत सारी होती हैं, एनएसएस, एनसीसी एंड बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं ऑफिस। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, लाइक जरूरी नहीं है कि आप किसी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके ही सोशल वर्क करें। मैं जब लाइक ये एनजीओ नहीं था तो उसके पहले भी मैं काम करता था इंडिविजुअल बेसिस पे। मुझे लगता था किसी को नीड है किसी भी तरीके से, तो अगर आप ह्यूमन है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है ऑब्वियसली, जो कि होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो डेवलप करना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी है तो आप इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी की आपको नीड है, इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते तो रघवेंद्र, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ट्रांसपेरेंट वर्क नहीं करती, तो आपके एनजीओ और बाकी एनजीओज में क्या फर्क है? हमें कैसे हैं। पता लगेगा कि राइट, ट्रांसपेरेंट वर्क आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप सोशल मीडिया पे तो कुछ भी डाल सकते हो। बिल्कुल। नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल राइट, मीडिया इज ट्रू। yeah, exactly. So, for transparency, I can say that like मैंने आपको बताया कि मोस्टली 90% जो भी वॉलंटियर्स हैं वो स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट किसी को भी कोई पे नहीं करते हैं हम, लाइक कोई भी पेड वॉलंटियर्स नहीं है हमारे उसमें, ना ही हमारे ऐसे लाइक किसी को हमने जॉब दे रखा है। उसके बाद भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो प्रॉपर एक्सेल सीट मेंटेन करते हैं। अगर आप 1 रुपीज भी हमें इन डोनेशन देते हैं तो हम उसको भी एक्सेल सीट में नोट करेंगे। उसको हमारे उसमें क्रेडिट डेबिटेड रहता है कि कितना क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हमसे कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे लाइक आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें आपकी एक्सेल सीट देखनी है, और हम फॉर श्योर आपको भेजेंगे और दिखाएंगे कि ये इतना इतना अभी पैसा हमारे पास आया है, इतना गया है, इस मीडियम से आया है, किसी ने कैश दिया है, किसी ने फोन पे किया, जो वॉट एवर इट इज। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए फर्स्ट थिंग जो मॉनिटरी रहती है उसके लिए हम लोग एक्सेल सीट मेंटेन करते हैं। ऑब्वियसली आईटीआर वगैरह जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो भी हम करते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसपेरेंसी सिस्टम जानना है तो आप उसमें लाइक सफल हो सकते हैं। बिकॉज जो लोग जैसे भी लाइक वर्क करते हैं उनका जो भी वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, आप कभी नहीं जान सकते कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या वर्किंग स्ट्रक्चर है, क्या वर्किंग वे है, और वो सच में वैलिड है या नहीं। और बात जो आपने सोशल मीडिया की तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी डाल सकता है। अगर आपको किसी का वर्क वेरीफाई करना है तो वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप उनके वॉलंटियर्स से, किसी भी रैंडम वॉलंटियर से बात कीजिए। आपको कहीं ना कहीं उनके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी वो वॉलंटियर्स के कुछ ना कुछ आपको कांटेक्ट डिटेल्स या कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो आप उनसे अगर उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे तो वो आपको एक इंसाइट दे सकते हैं कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, हमने क्या काम किया। सो मेनली वॉलंटियर्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स होते हैं। खासकर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मानता हूँ कि मेरी वैल्यू एक वॉलंटियर के इक्वली है, और कम ही मानता हूँ क्योंकि वॉलंटियर्स मेरे से ज़्यादा काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो अगर वॉलंटियर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो पिलर्स नहीं मिलेंगे हमें ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर से अगर बात कर सकते हैं तो आपको वहाँ का सिस्टम, वहाँ का ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आई आप होप मैं वॉलंटियर्स आपका क्वेश्चन आंसर कर पाया। और आप वॉलंटियर्स कैसे हायर करते हो? मतलब थ्रू योर सोशल मीडिया या पेज आप? या वॉलंटियर्स हायर करने का लाइक ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट सिटी टीम्स हैं जो हमारी, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर है, उनके एचआरस हैं जो भी हैं, गूगल फॉर्म्स हैं। तो
स्टूडेंट्स हैं या जो भी लाइक अप्रोच करते हैं उस गूगल फॉर्म के थ्रू वो फिल करके, तो आफ्टर दैट जो डिफरेंट टीम्स के एचआर अपॉइंटेड हैं वो उनसे बात करते हैं, एंड आफ्टर दैट वो ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन हो जाते हैं, इंटरेक्शन होता है, धीमे धीमे वो ड्राइव्स में कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद वो फील करते हैं कनेक्टेड अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से और उन सभी लोगों से। तो वो बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स ही होते हैं मोस्टली। या मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आपको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज है? या जस्ट वन स्मॉल मैसेज फॉर ऑल, लाइक हम जब भी रास्ते में चलते हैं तो हम बच्चों को या किसी भी लाइक हम बैगर्स को, मुझे बैगर्स वर्ड यूज नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप जब भी उनको देखते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें पैसे देकर एनकरेज ना करें। अगर आपको देना है कुछ, नहीं आपको उनकी कुछ भलाई के लिए करना है, तो आप उन्हें फूड दीजिए, क्लोथ्स दीजिए, कुछ ऐसा दें जो उनकी लाइफ में सच में यूज हो पाए। पैसे मत दें प्लीज, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा मिसयूज होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मिसयूज होते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ एक यही मैसेज है जो मैं सोसाइटी को या फिर जो लोग भी देख रहे हैं उनको देना चाहता हूँ कि बैगर्स को एनकरेज ना करें, स्ट्रीट चिल्ड्रंस को एनकरेज ना करें। जितना हो सकता है उनको आप काउंसिल कर सकते हैं, उनको आप कुछ डिफरेंट मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो दीजिए, बट प्लीज़ पैसे देकर उनको एनकरेज। थैंक यू। एंड आई हैव अ क्वेश्चन कि जब हम स्कूल्स में भी देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्टली मिड डे मील्स मिलती है, बट उसके बावजूद भी एजुकेशन की प्रॉब्लम और अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हुई तब भी इतनी ज्यादा, या और आई तब भी कैन बच्चे आंसर द स्कूल नहीं जा रहे हैं? बेसिकली मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं बुंदेलखंड के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे एजुकेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, लोगों को कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, ना उनके बच्चों को। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि इसका रीज़न क्या है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग। मैंने अपने गांव के जो स्कूल्स देखे, अभी थोड़ा सा बेटर हुए हैं पहले से, लेकिन पहले की अगर अभी मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊं तो स्कूल्स में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब कुछ होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन सिस्टम की वो ये है कि उन स्कूल्स में फैसिलिटीज तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं। वो आते हैं, वो बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनका अगर मोटिव वो पढ़ाना, बहुत सारे स्कूल्स के मैं आपको एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो टीचर्स की विलिंगनेस होती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, कुछ उन्हें बनाएं, कुछ उन्हें करके दिखाएं। तो उन स्कूल्स में बहुत अच्छे से होता है, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली चलता है। लेकिन 80 to 90% स्कूल्स में टीचर्स सिर्फ अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, लाइक वो जाते हैं वापस आते हैं, तो कोई पर्पज नहीं होता है बच्चों को पढ़ाने का। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चे भी नहीं जाते हैं स्कूल। एंड सेकंड थिंग, एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक कल्चर बन गया है, तो वो इस गांव की स्कूल्स में एक कल्चर बना हुआ है कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो सिर्फ बैग, जो उन्हें बुक्स मिल रही हैं, जो उन्हें खाना मिल रहा है, उसके लिए जा रहे हैं बस। उसके बाद वो भाग आते हैं स्कूल से, अपना खेलते हैं, घूमते, जो भी करते हैं। एंड उनके गार्जियंस भी इतना कंसर्न नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइक स्कूल में तो कोई पढ़ाया नहीं जाता है, और उनकी भी एक डिफरेंट मेंटेलिटी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब गार्जियंस अगर लिटरेट होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो अपने बच्चों के बारे में सोच पाएंगे बेहतर। या फिर लाइक हम लोगों को, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करते हैं कि एजुकेशन कैंपेन हम रन करते हैं, जब हम जाते हैं स्लम एरियाज में, थोड़ा थोड़ा टाइम देके उन गार्जियंस को हम समझाते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या उसके फ्यूचर आउटकम्स होंगे। तो अगर ऐसे कुछ कैंपेन्स अगर हम गवर्नमेंट अगर रन करे स्कूल्स, जो जिन विलेजेस में उन्होंने स्कूल बना रखे हैं, तो पहले उन विलेजेस में कैंपेन्स रन करने चाहिए इस तरीके से कि गार्जियंस को मोटिवेट करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी एडवांटेजेस बताएं कि अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा इन। बिकॉज विजन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर किसी भी इंसान के पास विजन है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अभी होता है ऐसा, मैं एक बहुत कॉमन आपको एग्जांपल दूंगा कि एज ए स्टूडेंट हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। एक स्ट्रीम जब हम सेलेक्ट करते हैं, वेदर इट इज साइंस, कॉमर्स, आर्ट, वट एवर इट इज, हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आगे कितनी अपॉर्चुनिटी है।
तो हमारे जब हमें नहीं पता होता है कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है, तो हमारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है उस स्टूडेंट। तो ऐसे ही अगर उन गार्जियंस को पता होगा कि उन बच्चों को अगर वो पढ़ाएंगे तो उनकी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होंगे बच्चों को पढ़ाने में। और कहीं ना कहीं स्कूल का ही रोल नहीं होता है सिर्फ एजुकेशन के लिए, घर पर बच्चों को पढ़ाना और मेंटरशिप, गार्जियनशिप, ये सब भी बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड। और जैसे आपने टीचर्स वाली बात की, तो मैंने ना एक जगह ये भी सुना था कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है उन्हें पढ़ाने दिया ही नहीं जाता। मतलब जैसे इलेक्शन ड्यूटी होती है तो उन्हें लगा देते हैं, पोलियो देनी होती है तो उन्हें लगा देते हैं। मतलब कोई भी जहाँ पे ड्यूटी देनी होती है वहां पे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को लगा देते हैं, तो वो पढ़ाएंगे कब बच्चों को? और वहां पे वैकेंसीज भी बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा होती है। ये सब भी होता है जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट तो होना ऑब्वियस है, लेकिन फिर उनका भी फोकस उतना ही हो जाता है कि लाइक हमें ये ड्यूटी करना है, ये करना है, वो करना है। बट मैं ये कह सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि पहले से चीज़ें बेटर हो रही है कहीं ना कहीं, गाँव में भी लोगों का थोड़ा बहुत ध्यान जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है सोशल मीडिया के थ्रू भी, एंड सोशल मीडिया के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, आपको पता है। एंड सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी भी हो रही है और बुरी भी है। होप फॉर द बेस्ट। तो जैसे आपने बताया कि आप छोटे से गांव से जहाँ पे एजुकेशन इतनी नहीं मिलती, तो हाउ आर यू डिफरेंट? आप कैसे या तो टीम में आ गए बेसिकली एंड मेरी हो जर्नी रहा है? पे, मेरी जर्नी पे क्वेश्चन है तो गांव की कंडीशन को देख के लाइक मैंने आफ्टर फिफ्थ स्टैंडर्ड पास करके मैंने अपना गाँव छोड़ दिया था। एंड अराउंड मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं मुझे अपना गाँव छोड़े हुए। मैं फ्रिक्वेंटली विजिट करता हूँ बट बिकॉज ऑफ वर्स्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैंने गाँव को छोड़ा। एंड लाइक छोटे छोटे टाउन से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। I have completed my 12th from Air Force School Gwalior, then फिर अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाउ आई एम इन यूनिवर्सिटी। तो छोटे छोटे हर्डल्स थे कुछ, मैंने उनको क्रॉस किया। एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं धीमे धीमे चीज़ों को क्रॉस करता रहूँगा तो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उस मोटिवेशन से आगे बढ़ गया। एंड अभी बहुत लंबा है रास्ता। ये तो डोंट यू थिंक, मतलब डोंट यू विश कि इन फ्यूचर कि आप अपने जैसे गांव पे जैसे आपको एजुकेशन मिल, तो वैसी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करो अपने एक्जेक्टली उस दैट्स विलेज माय में? फ्यूचर विजन, या जो कि मैंने नहीं बोला लेकिन आपने गैस कर लिया। सो आई होप कि मैंने काफी आई एम इलेबरेट कर दिया चीजों को क्या हुआ। आई एम आस्किंग कि जैसे हम इतनी ज्यादा रिजर्वेशन तो देते हैं, SC या ST, अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी क्यों है सोसाइटी? ओके, सो क्वेश्चन बेसिकली जैसा मुझे लगता है कि रिजर्वेशन इज नॉट एन ऑप्शन। कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो रिजर्वेशन होता है, किसी भी चीज में रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप रिजर्वेशन देकर एनकरेज तो करते हैं लोगों को, लेकिन वो एनकरेजमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है दूसरी सोसाइटी पे या फिर उन लोगों पर जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, काफी बेटर परफॉर्मेंस होता है उनका, लेकिन वो सिर्फ बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन वो रह जाता है। तो रिजर्वेशन एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए अगर आपको एजुकेशन सिस्टम को अपने improve करना है, या आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में उन लोगों को लाइक हम एनकरेज करें जो लोअर कास्ट हैं या फिर लाइक ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उन लोगों को हमें लाइक एनकरेजमेंट देना चाहिए। तो आई थिंक जो कैंपेन वाली मैंने आपको बात बोली थी वो काफ़ी बेहतर होगा उस चीज़ के लिए। अगर हम एक बहुत सिंपल सा पॉइंट ऐड करूंगा, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपना एडवर्टाइजमेंट करती है इलेक्शन के टाइम, अगर उसका 10% भी ना किसी भी पॉलिसी या फिर किसी भी उसके लिए हम यूज करें, उनका 10% भी अगर हम यूज करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि जितना जोश और जुनून उनके इलेक्शन कैंपेन में रहता है ना, घर घर जाकर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों को समझाना, उनका ब्रेन वॉश करना, जो भी वॉट एवर इट इज, अगर उसका 10% भी हम इन सब पॉलिसीज के लिए या फिर इन सब कैंपेन्स के लिए निकाल दें, तो बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली रिजर्वेशन कोई ऑप्शन नहीं होता है।
एंड रिजर्वेशन से लाइक ऐसा लगता है कि हम एक वीकर सेक्शन को एनकरेजमेंट दे रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बिकॉज लाइक आपने लेट्स से लोअर कास्ट को रिजर्वेशन दे रखा है, फाइन, लेकिन लोअर कास्ट से वही गिने चुने लोग आ रहे हैं जिनको रिजर्वेशन मिल गया। 5 लोग आ रहे हैं, 5 सीट थी, फुल हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स जो आ ही नहीं रहे, जो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बेसिकली रिजर्वेशन तो इस चीज के लिए था ना कि सब लोग आए, आगे बढ़े, सब लोग एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो वो तो कहीं ना कहीं मोटिव पूरा हो ही नहीं रहा है रिजर्वेशन। तो जब तक आप अवेयरनेस नहीं लाएंगे, कोई पर्पज नहीं है रिजर्वेशन का। एजुकेशन सिस्टम में तो स्पेशली रिजर्वेशन का प्लेस नहीं होना चाहिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, एजुकेशन सिस्टम में जो लाइक रिजर्वेशन होता है प्रोफेसरशिप के लिए, टीचर्स के लिए, इन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन होता क्या है कि प्रोफेसर सिलेक्ट हो जाते हैं रिजर्वेशन बेसिस पे, लेकिन उनका नॉलेज लेवल कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस की बात होती है, जो नॉलेज की बात होती है, उसकी उससे जो भी वो सब्जेक्ट लेते हैं, उस सब्जेक्ट में बच्चे का पूरा, स्टूडेंट का पूरा करियर खत्म होता है। लाइक जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। तो अगर ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहा तो लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, और कहीं ना कहीं हमें खुद ही बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो हमसे झेलने पड़ेंगे। तो आई होप कि इन फ्यूचर ये सिस्टम कहीं ना कहीं चेंज होगा, कहीं ना कहीं इसको लाइक इम्प्रूव किया जाएगा। कुछ ऐसे रिजर्वेशन ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए? ऑप्शन लाइक मेंशन वन नेम, शायद आपने सुना होगा कभी, विकास देवी जी। तो नेटवर्क इशू है, एक उन्होंने बहुत सेकेंड। अच्छी बात बोली थी रिजर्वेशन। एक सेकेंड, नेटवर्क इशू है आपके साइड से आई गेस। हेलो, हाँ, अब ठीक है। एम आई ऑडिबल नाउ? या, कैन आई कंटिन्यू? हाँ, ठीक है। सो आई वांट टू मेंशन वन नेम लाइक विकास दीपिकीर्ति सर को शायद आपने कभी सुना होगा, या फिर उनकी कभी वीडियोस वगैरह आपने रखा। आईएएस के सो लाइक टीचर है। मैं उनसे बहुत ज्यादा लाइक कैसे इन्फ्लुएंस रहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो, मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मुझे आईएएस नहीं बनना है, इसलिए मैं उनकी वीडियोस फ्रिक्वेंटली कभी कभी देखता हूँ। तो रिजर्वेशन को लेकर उनका जो पर्सपेक्टिव है, व्यूज, वो बहुत अच्छे हैं। लाइक उनका कहना ऐसा है कि सिर्फ कास्ट बेसिस पे या फिर सिर्फ इकोनॉमिकल बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम दोनों चीजों को मर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बेटर ऑप्शन निकलेगा। कि अभी भी ऐसी हालात है, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ कि जो लोअर कास्ट है उन लोगों को इक्वलिटी है या फिर उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल नहीं है। मैं अपने खुद गांव की आपको कंडीशन बता सकता हूँ, वहाँ पे लोगों, कुछ लोगों को टच नहीं किया जाता। तो नीड है, ऐसा नहीं है अनटचेबिलिटी अभी रिजर्वेशन की भी है। नीड नहीं है, क्या अभी भी है। मेरा गांव काफी ऐसे लाइक वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है, बट अनटचेबिलिटी और ये सारी चीजें अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। तो रिजर्वेशन की नीड से लाइक ये सारी चीजें खत्म हो सकती है, लेकिन इन दोनों चीजों को मैं मर्ज करना चाहिए कहीं ना कहीं। इकोनॉमिकली बेसिस पे भी रिजर्वेशन होना चाहिए और कास्ट बेसिस पे। तो अगर ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिल पाएगा। क्योंकि आप हायर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है या फिर आपका जो इकोनॉमिकल सपोर्ट है वो काफी अच्छा है। तो कुछ ऐसे लोगों को भी रिजर्वेशन की जरूरत होती है। एंड आप, ये भी है कि आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ वो सारी चीजें हो रही हैं जो बहुत ऐसे पास्ट में हुआ करती थी लोगों को। तो कुछ लोग बहुत डेवलप्ड हो गए हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा दबे हुए हैं जो हायर कास्ट से। तो उन दोनों लोगों को रिजर्वेशन की इक्वल नीड है। तो उन दोनों लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का सिर्फ एक यही वे है कि कास्टिज्म एंड प्लस इकोनॉमिकल बेसिस, दोनों अगर चीजों को मर्ज किया जाएगा तो आई थिंक एक बेटर सॉल्यूशन निकल सकता हाँ, क्योंकि जब मतलब अगर वो, इसे फिर हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कह देते हैं कि है। एक्सेप्ट, उनके साथ नहीं हो रहा है। ठीक। तो यही आई थिंक हम क्वेश्चंस टॉपिक थे। से बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गए। या आई थिंक दिस सेम, बट दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। या, Thank you very much, Raghavin, for joining with us today.
Thanks for inviting. Thank you so much for having. Hi, this is Raghavendra, founder and a proud volunteer of this organization. कोरोना जैसी महामारी ने गरीबों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। इसी के मद्देनजर ग्वालियर के कुछ इलाकों में हेल्पिंग हट संस्था की टीमें आ गई। उन्होंने गरीब और असहाय परिवारों से उचित दूरी बनाते हुए पुराने कपड़े वितरित किए हैं।